اور اب خبروں کی تفصیل۔ حیدرآباد میں حج کیمپ کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل صبح پہلا قافلہ مقدس سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کل صبح حیدرآباد سے روانہ ہونے والے کرناٹک کے عازمین حج کی روانگی کے لیے تیار ہے۔ پہلے قافلے میں کرناٹک کے 420 عازمین سفر مقدس کے لیے روانہ ہوں گے۔ پہلے قافلے کی روانگی کے ایک ہفتے بعد یعنی 26 جولائی سے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے عازمین کی روانگی شروع ہو جائے گی۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے چیئرمین مسیح اللہ خان نے کہا کہ حیدرآباد سے مقدس سفر کے لیے روانہ ہونے والے دوسری ریاستوں کے عازمین کے ساتھ کسی بھی قسم کا امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی تلنگانہ کے علاوہ کرناٹک، مہاراشٹر اور آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے عازمین کو حیدرآباد ایمبارکیشن پوائنٹ سے سفر حج کے لیے روانہ کرنے کے انتظامات مکمل کر چکی ہے۔ رواں برس حیدرآباد سے 4 ریاستوں کے 8000 سے زائد عازمین 22 قافلوں کے ذریعے 4 اگست تک جدہ روانہ ہوں گے۔ کس قسم کی تیاریاں ہیں؟ ماشاءاللہ سے پورے تیاریاں ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اور خاص کر کے کل کرناٹکا کی جو فرسٹ فلائٹ ہے وہ حاجیوں کے لیے پورے تیاریاں ہو چکے ہیں، ان کی رہائش کے لیے، ان کی یہاں سے وداعی کے لیے ہر وہ چیز کی ہم تیاری کر چکے ہیں۔ رہائش کا ہر وہ چیز کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس سال سے ہمارے پاس یہاں پورے واٹر پروف شیڈس ہے، اور الحمدللہ ہر وہ چیز کی تیاریاں ہم نمبر 1 طریقے سے کر کے رکھے ہیں آلریڈی۔ وہ آندھرا کے ہو، تلنگانہ کے ہو، یا مہاراشٹر کے ہو، یا کرناٹک، حاجی ہے، سب اللہ کے گھر کے مہمان ہیں۔ ہمارا رویہ، ہمارا سلوک ہر کسی کا ایک جیسا ہی ہے، ہر حاجی ہمارے لیے حاجی ہے۔ جو 26 سے جو آپ لوگوں کا حج کیمپ شروع ہوگا، 27 سے جو ہے عازمین یہاں سے جائیں گے، تو اس کیمپ کے لیے کس طرح کی تیاریاں ہیں آپ لوگ؟ اب یہی کیمپ سے اندازہ لگا لے سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے ریہرسل ہے۔ جو آج جو ہمارے انتظامات ہے، انشاءاللہ یہی انتظامات 26 سے 4 تاریخ تک بھی رہیں گے۔ اس بار ایئر کنڈیشننگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے؟ جی ماشاءاللہ سے یہ حیدرآباد سپلائنگ کمپنی کو دیکھیں، اس کے اندر ایئر کنڈیشن کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ پورے اسٹالس آپ کو ویزیبل لگا دیے ہیں، ایون اسکرین ہر وہ چیز LED کا لگائے ہیں، ہر وہ چیز کا ہم ٹرانسپیرنٹلی انتظام کیے ہیں۔ خاص کر رہائش کا بھی یہ اس سال سے کاٹس ڈالے ہیں، جیسا گزشتہ سالوں میں یہاں پہ صرف گدے ڈالے جاتے تھے، لیکن اس سال سے پلنگ جو کاٹ کہتے ہیں، کاٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ اب بات کر رہے تھے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین مسیح الدین خان صاحب سے، وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر کس طرح کے انتظامات ہیں۔ کیمرہ مین سند کے ساتھ میں انیس الرحمان، نیوز 18 حیدرآباد۔ قلعہ گولکنڈہ میں بونال تہوار کے دوران مساجد کی بے حرمتی کے مسئلے کو یہاں کے مقامی ہندو مسلم نوجوانوں کی سوجھ بوجھ سے حل کر لیا گیا۔ مساجد کی بے حرمتی کی شکایت پر آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے قلعے کے احاطے میں موجود مساجد کے اطراف بیریکیڈنگز لگوائے ہیں۔ خاص رپورٹ۔ حیدرآباد کے تاریخی قلعے گولکنڈہ میں 7 جولائی سے تلنگانہ کا مقامی تہوار بونال منایا جا رہا ہے۔ ہر سال کل 21 دنوں کے دوران منائے جانے والے اس تہوار میں قلعہ گولکنڈہ میں واقع جگدمبا دیوی کے مندر کے درشن کے لیے ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ اس دوران سوشل میڈیا پر اس قسم کی تصاویر گشت کرنے لگیں، جس سے یہ ظاہر ہونے لگا تھا کہ قلعے میں موجود تاریخی مساجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور ان تصاویر کے وائرل ہونے کے بعد قلعہ گولکنڈہ کے اطراف و اکناف رہنے والے مسلم نوجوانوں نے جوش کے بجائے ہوش سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ملے، انہوں بات کر کے بولے ہمارا بہت افسوس ہے، ہمارے کو ایسا ہوا سو یہاں پہ مسجد میں نہیں ہونا تھا۔ ایسے ڈپارٹمنٹ ہمارے کو بولا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، بولے تو ابھی تھوڑا مطمئن ہے۔ گولکنڈہ کے نوجوانوں اور سماجی کارکنوں کی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ASI اور محکمہ پولیس سے نمائندگی کے بعد ASI نے قلعے میں موجود مساجد پر بیریکیڈنگ لگاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ مساجد کے اندر کوئی داخل نہ ہونے پائے۔ اس موقع پر مقامی نوجوانوں نے باقاعدہ ویڈیو شوٹ کیا اور عوام کو یہ بتایا کہ ASI نے مساجد کو مزید متاثر ہونے سے بچانے کے لیے اپنی کوشش کی ہے۔ مقامی مسلمانوں کو اس وقت مزید یہ اعتماد حاصل ہوا کہ ایک ہندو نوجوان نے مساجد پر تیلگو زبان میں ایک بینر لگاتے ہوئے یہ اپیل کی کہ مساجد کا احترام کیا جائے۔ کل ملا کر مقامی ہندو اور مسلم بھائیوں کی سمجھ بوجھ اور متعلقہ سرکاری عہدیداروں کی بروقت حکمت عملی سے ایک نازک مسئلے کو حل کر لیا گیا۔ فضل ہے، بہت بڑا سانحہ ہوتے ہوتے بچ گیا کہ
लोग मुश्तइल नहीं हुए देखकर भी बहुत काबिल मुबारकबाद है कि तमाम लोग इस सिलसिले में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और पुलिस भी वहाँ पर फौरी हरकत में आते हुए बैरिकेड्स लगाए। उन्होंने भी ये तयक़ुन दिया कि यहाँ पर आइंदा कोई भी फेस्टिवल हो तो उसको वहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त किया जाएगा। बुनालू रियासत तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है, खास त्योहार है और ये त्योहार इस साल 7 जुलाई से 28 जुलाई तक मनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। कल से तेलंगाना कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल का इजलास शुरू होना है। 2 रोज़ा इजलास के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात पर असेंबली चेयरमैन पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने आज शाम पुलिस हुक्काम के साथ अहम मीटिंग की। स्पीकर चेंबर में मुनक़दा मीटिंग में काउंसिल के चेयरमैन और मुक़न्नना उमूर के वजीर भी शरीक रहे। असेंबली और काउंसिल के हुक्काम, महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, DGP और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर मीटिंग में मौजूद रहे। इस दौरान स्पीकर ने हुक्काम को मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक हिदायत जारी की, साथ ही अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखने की सलाह दी। कल सुबह 6 बजे से असेंबली के करीब गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर रह सकती है। कानून साज असेंबली और काउंसिल के आसपास मुजाहरों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। वहीं असेंबली इजलास से एक दिन पहले तेलंगाना कैबिनेट का इजलास वज़ीर आला KCR की सदारत में मुनक़्क़िद किया गया। इजलास CM कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में तेलंगाना असेंबली के खुसूसी सेशन में पेश होने वाले नए म्युनिसिपल कानून पर भी गौर खौज किया गया। इंजीनियरिंग में डिटेंशन निज़ाम को मनसूख करने की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पर धरना दिया गया। इंजीनियरिंग के तलबा ने कुकटपल्ली में JNTUH के गेट पर मुजाहरा किया। NSUI के ज़रिए एहतमाम मुख्तलिफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ एहतजाज के लिए जमा हुए। स्टूडेंट्स ने कहा कि डिटेंशन सिस्टम के सबब तलबा को कीमती तालीमी साल खोना पड़ रहा है। फेल तलबा के लिए एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान कराने का यहाँ मुतालबा किया गया। साथ ही एहतजाजी तलबा ने धमकी दी कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस मामले में अगर अब भी खामोश रहा तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। మొత్తం డిటెన్షన్ లేకుండా సప్లిమెంటరీ అడ్వాన్స్ అప్లై చేస్తే వాళ్ళకి లాభం జరుగుతుందని ఎన్నో నుంచి విద్యార్థులు అడుగుతున్నారు. వాళ్ళు ఎంతమంది మేము లోపలికి పోయి దానికి చేసినా కానీ పిటిషన్ అప్లై చేసినా కానీ వాళ్ళు ఏమి స్పందించకపోవడంతో మేము ఈరోజు బయట జరిగింది. మా NSUI దీనికి ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. విద్యా కోసం పోరాడతాం. వాళ్ళు మాత్రం చర్య తీసుకోకపోతే ఇక్కడే రేయి పగలు కూర్చోడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇంకా అలాగనే సబ్జెక్ట్స్ కరెక్షన్స్ కూడా చక్కగా జరుగుతున్నాయని JNTUలో చాలామంది మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కూడా అన్యాయం జరుగుతుందన్న. దీన్ని మాత్రం మీడియా ద్వారా JNTUకు తెలవాలని ఇక్కడ పోరాటం చేస్తాం. हैदराबाद के नवाही इलाकों में सनती यूनिट्स की तादाद है कि लगातार बढ़ती जा रही है और इसका खमियाजा इलाके के मकीनों को भुगतना पड़ रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल की अनदेखी के चलते लोगों का जीना तक दूभर हो चुका है। एक रिपोर्ट। चौवुट उप्पल हैदराबाद से सबसे करीब टाउन है। जिला यादाद्री भूंगीर के इस इलाके में फी एकड़ जमीन 1 से 2 करोड़ रुपए में खरीदी जा सकती है। पूरे खित्ते में रियल एस्टेट का कारोबार जोरों पर है। ताहम इस इलाके में ज़ेर जमीन पानी काफी आलूदा हो चुका है। सिर्फ चौवुट उप्पल ही नहीं बल्कि शहर हैदराबाद के अतराफ अकनाफ मौजूद तमाम रिहायशी इलाकों और आबादियों में यही सूरत हाल है। दरअसल इंतजामिया कारखानों की नाकारा और जहरीले कचरे को ठिकाने लगाने में काफी कोताही से काम लेती है। खास तौर पर इलाके में मौजूद लगभग 30 दवासाजी के कारखाने पूरे इलाके में कीमियावी कचरे को फेंक देते हैं जो ज़ेर जमीन पानी को आलूदा कर रहा है। चौवुट उप्पल, चटियाला, भूदान, पोचमपल्ली के इलाकों में ज़ेर जमीन पानी काफी आलूदा हो चुका है। यहाँ कई मकामात पर बोरों से आ रहा पानी काश्त के लिए भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा है। इलाके के कई दीही इलाकों के मकीन आलूदा पानी को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कारखानों से निकलने वाले केमिकल के ताफुन से लोगों का जीना दोभर हो गया है। इस सब के बावजूद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टस से मस नहीं हुआ है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एहलकार इलाके में फिर कर
कुछ जगहों से पानी और मिट्टी के नमूने जमा करने के अलावा कोई और काम नहीं कर रहे हैं। इलाके में परिंदों और दीगर जानदारों की तादाद रोज बरोज घटती जा रही है। लोग अपने मवेशियों को भी खरीद कर पानी पिला रहे हैं। पीने के पानी पर लोगों को हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इस पूरी तस्वीर का दूसरा रुख भी है। इलाके में फार्मा कंपनियां किसानों से 50 रुपए फी टैंक पानी खरीद रही है और पानी की किल्लत के इस दौर में अपने काम आसानी से अंजाम दे रही है। ज़री शोबे के लिए 24 घंटे बिजली सप्लाई से भी ये कंपनियां फायदा उठा रही हैं और बिला रोक टोक अपने यूनिट्स को तौसी दे रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इन सन्नती यूनिटों ने गैर कानूनी तरीके इख्तियार करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जिला निजामाबाद कमरपल्ली मंडल के इनायत नगर में जंगल की जमीन को लेकर तनाज़ा देखा गया। गांव में सर्वे नंबर 111 पर महकमा जंगलात के अहदेदार और एहलकार शजरकारी यानी पेड़ लगाने के लिए पहुंचे थे। ताहम गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस की मदद से महकमा जंगलात के एहलकारों ने खड़ी फसलों को तबाह कर दिया और यहां फिर पौधे लगाए गए। ट्रैक्टर से मकई और सोयाबीन की खड़ी फसल को तबाह कर दिया गया। लोगों ने कहा है कि गिरिजन तबके के लोग यहां कई दहाइयों से अपनी फसलें उगाते आ रहे हैं। आईपीएस अभय ने नेशनल पुलिस एकेडमी के नए डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने मुल्क में बढ़ते हुए साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को तरबियत देने का ऐलान किया। अभय का ताल्लुक आईपीएस के बैच 1986 से है। अभय उड़ीसा के रहने वाले हैं। जो इन सर्विस कोर्स है, जो पुराने जो कई एसपी हैं, डीआईपी हैं, आईजी हैं, एडिशनल डीजी हैं, वो लोग जो आते हैं उसमें 2 नया एरिया का प्रायोरिटी देने को मैं सोचा हूँ। एक प्रायोरिटी देने का काम है कि इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग का, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में भी अधिक टाइम इन्वेस्टिगेशन दे रहा हूँ, तो मुझको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है। जो डिस्ट्रिक्ट एसपी डीआईजी वगैरह हैं उनके, फॉर एग्जाम्पल मैं सीबीआई में था, वहाँ 7 साल से वहाँ इन्वेस्टिगेशन का ट्रेनिंग देखा है। सीबीआई एकेडमी में तो मैं ट्रेनिंग दे ही रहा था। नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो में इन्वेस्टिगेशन का ट्रेनिंग देखा है। उड़ीसा क्राइम ब्रांच का हेड था, वहाँ इन्वेस्टिगेशन का ट्रेनिंग देखा है। मुझको लगता है कि जो नए एरिया इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं, चाहे साइबर क्राइम हो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड क्राइम हो, ये इन्वेस्टिगेशन को और मजबूत करने में एनटीए फर्दर कोर्सेज जरूर होगा। हैदराबाद में कानूनी तरीके से तय मुद्दत से ज़ायद वक्त तक रहने वाले 23 गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन लोगों को जुर्माना अदा करने या फिर क़याम की मुद्दत में तौसीक़ कराने के ऑप्शन दिए हैं। कई गैर मुल्कियों ने वीज़ा तजदीद कराने की दरख्वास्त दी है। रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने पुलिस की मदद से मुहिम चलाते हुए कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले इन गैर मुल्की बाशिंदों की निशानदही की। सोमालिया, सूडान और यमन के बाशिंदे खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब पाए गए। बंजारा हिल्स, गोलकुंडा, आसिफ नगर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अंबरपेट, चिकटपल्ली, चंद्रायन गुट्टा और दीगर मुकामात पर 74 गैर मुल्कियों से पुलिस ने इस दौरान पूछताछ की। हैदराबाद के गचिबावली स्टेडियम में 20 जुलाई से प्रो कबड्डी सीजन 7 का आगाज होने वाला है। प्रो कबड्डी सीजन 7 26 जुलाई तक चलेगा। इसमें मुल्क और बैरून मुमालिक के कबड्डी खिलाड़ी शिरकत करेंगे। ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మళ్ళీ ఈ సీజన్ 7 బిగినింగ్ మన గేమ్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్లో దిస్ టైమ్ వీ స్పెండ్ ద హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఫర్ 1,45 lakhsకి సిద్ధార్థ్ దేశాయ్ కేమ్ ఇన్ అండ్ వీ అగైన్ రీటైన్డ్ అబు అజర్ అండ్ విశాల్ భరద్వాజ్ కార్నర్స్కి. సో లాస్ట్ ఇయర్ డిఫెన్స్ ఎలా ఉందో ఈ ఇయర్ ఐ థింక్ లాస్ట్ ఇయర్ మనకు ఒక లెఫ్ట్ కార్నర్ వాజ్ ఎ టైట్ స్పాట్. సో అది ఈసారి ఫిల్ చేసాం అరుణ్ తోటి. సో ఐ థింక్ ద టీమ్ ఇస్ డిఫెన్స్ వైజ్ ఇట్స్ స్ట్రెంథెండ్ అండ్ ఆఫెన్స్
Rahul Chaudhary 6 seasons ఆడాడు మనకి. సో ఐ థాట్ దిస్ టైమ్ వీ నీడ్ ఎ యంగర్ లెగ్స్ అండ్ ఎ ఫ్రెషర్ టీమ్. సో ఈసారి ఆఫెన్స్ లీడ్ చేయడానికి సిద్ధార్థ్ దేశాయిని తీసుకొచ్చాం. और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। GSLV MK3 खलाई गाड़ी की तकनीकी खराबी को दूर, चंद्रयान मिशन को आइंदा हफ्ते छोड़ने का इम्कान। आंध्र प्रदेश असेंबली में अपोजिशन और हुक्मरान जमात के लीडरों के दरमियान गर्मा गर्म बहस। स्पीकर ने भी अपोजिशन अरकान के तर्ज अमल की सरजनिश। बीबी हरिचंदन आंध्र प्रदेश के गवर्नर नामजद। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू ने दी अपनी मुबारकबाद। और बसों के जरिए बड़ी मिकदार में गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को कराया गया नाकाम। एक औरत के बेशमूल 9 मुलजिम पुलिस की तहवील में। चंद्रयान मिशन आइंदा हफ्ते खला में भेजा जा सकता है। खलाई गाड़ी में आई तकनीकी खराबी को दूर कर लिए जाने का ऐलान किया गया है। इसरो के साइंसदानों ने GSL खलाई VM के गाड़ी में हुई तकनीकी खराबी को दूर किया। इम्कान है कि 20 से 23 जुलाई के दरमियान खलाई मिशन को रवाना किया जाएगा। जिला नेल्लूर के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान मिशन को 15 जुलाई की शब खला में भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। ताहम रॉकेट में तकनीकी खराबी आने के बायस ये मंसूबा रोक दिया गया था। आंध्र प्रदेश असेंबली का बजट सेशन जारी है। अपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान गर्मा गर्म बहस भी देखने में आ रही है। आज स्पीकर टी सीताराम ने ऐवान में अपोजिशन तेलुगु देशम के अरकान के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया और उन्हें तेलुगु देशम के अरकान से पूछा क्या आपकी मर्जी के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई चलाई जाए। साथ ही उन्होंने इन अरकान को हिदायत जारी की कि वो ऐवान की कार्रवाई में रुकावट का रवैया तर्क कर दें। तेलुगु देशम के अरकान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर सवाल पूछने का मौका देने के लिए इसरार कर रहे थे। మీరు చెప్పినట్టుగా హౌస్ రన్ చేయాలా, మీరు చెప్పినట్టుగా హౌస్ రన్ చేయాలా, బెదిరించొద్దు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు బెదిరించకండి. డోంట్ డిక్టేటింగ్ టర్మ్, బెదిరించొద్దు, మీరు ఫైట్ చేయకండి. డోంట్ ఓన్ ది పోడియం, no. మీరు బెదిరించకండి. No. Please. एपी के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज असेंबली में रिमार्क किया कि अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू हर बात को मसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बजट सेशन के मौके पर आज ऐवान में अपोजिशन और हुक्मरान बेंचेस में तल्ख अल्फाज का तबादला हुआ। अपोजिशन अरकान को नशिस्तों के अलॉटमेंट के मसले पर काफ़ी बहस भी देखी गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि नशिस्तों के अलॉटमेंट का मसला असेंबली के कवायद के लिहाज से होता है। మీకు ఈ రోజు మేము ఔదార్యంతో మేము ఇస్తా ఉన్న వెసులుబాటులో కనీసం 20% 10% కూడా మాకు అందుబాటులో కావాలంటే మీ మనస్సాక్షిని అడగండి, మీ గుండెల మీద మీరు చేతులు వేసుకొని అడగండి. మేము అవుట్ ఆఫ్ ది వే పోతా ఉన్నాం. అవుట్ ఆఫ్ ది వే పోయి మిమ్మల్ని అకామిడేట్ చేయడం కోసం మీరు ఏ రకంగా కూడా మీరు తక్కువ మంది ఉన్నా కూడా మీకు సరైన అవకాశం ఇవ్వాలి అని చెప్పి మంచి ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని అకామిడేట్ చేయడం కోసం అవుట్ ఆఫ్ ది వే మేము పోతా ఉన్నాం. మేము అవుట్ ఆఫ్ ది వే మేము పోతా ఉంటే ప్రతి సందర్భంలోనూ దాన్ని వక్రీకరించడం, దాంట్లో నుంచి తప్పుదావు తీసుకోవడం, దాంట్లో నుంచి రచ్చ చేసి ఏదో సింపతి గెయిన్ చేసుకోవాలని చెప్పి తాపత్రయపడడం. సరే ఏ రకంగా మీరు మంచి చేస్తా ఉన్నారు అనేది ఒక్కసారి మీ మనస్సాక్షిని అడగమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇంత దారుణంగా మీరు వ్యవహరిస్తా ఉన్న తీరును మార్చుకోమని చెప్పి మరొకసారి చెప్తా ఉన్నాను. वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने सीनियर होने से मुतालिक अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू के रिमार्क का हवाला दिए जाने पर कहा कि कवायद का इतलाक तमाम अरकान पर होता है। आया वो पहली मर्तबा रुकने असेंबली बने हों या फिर
6 मरतबा। यहाँ तक कि 40 साल तजुर्बा रखने वाले लीडर को भी कवायद की पासदारी करनी ही पड़ती है। వచ్చేనాటికి అవకాశం ఇచ్చారు. ఇచ్చినప్పుడు సీట్ గొడవ వచ్చింది. సీట్ గొడవ వస్తానే మళ్ళీ మీరు చెప్పినప్పుడు నేను రిక్వెస్ట్ చేసి వెనక్కి పోయి మాట్లాడమని చెప్పాను. మళ్ళీ మీరు ఆయనకు అవకాశం ఇవ్వకుండా రామనారాయణ రెడ్డి గారు చెప్పారని ముందుకు పోయే పరిస్థితి వచ్చారు. అంటే మీరు చెప్పిన మాట మేము ఆనర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇచ్చిన మాట కూడా మీరు ఆనర్ చేయాలి కదా స్పీకర్ గారు. నేననేది ఇప్పుడు రామనారాయణ రెడ్డి గారు कानून साज काउंसिल में महकमा रेवेन्यू के वजीर पी सुभाष चंद्र बोस ने बताया कि नए अजला तश्कील देने की तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रोग्राम्स की मौसर तरीके से अंजाम दही और हुक्मरानी के उमूर में सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए नए अजला तश्कील दिए जाएंगे। इस मामले में अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात पर सुभाष चंद्र बोस ने तफसीली जवाब दिया। अजला की तश्कील के दौरान अवाम की राय को फौकियत देने पर अरकान ने जोर दिया। साथ ही आबादी, जोग्राफियाई नौइयत, आमदनी और तारीखी पहलुओं को भी मद्देनजर रखते हुए नए अजला तश्कील देने का उन्होंने यकीन दिलाया। गरीब तलबा और तालिबात की माओं को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाने से मुताल्लिक जगनन्ना अम्मा बड़ी स्कीम की सताइश की जा रही है। इंटर तलबा और तालिबात को स्कीम के दायरे में लाने के फैसले की भी काफ़ी सताइश की जा रही है। इस सिलसिले में आज कुछ इंटरमीडिएट तलबा ने वज़ीर से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मुबारकबाद दी। तलबा ने सीएम से कहा कि पसमानदा और अक़लियती तबक़ात के बच्चों के लिए स्कीम काफ़ी मुफीद साबित हो रही है और 10वीं के बाद गरीब लड़कियों को तालीम जारी रखने में काफ़ी मददगार भी साबित होगी। वाज़ेह है कि स्कीम के तहत तलबा और तालिबात की माओं को सालाना 15,000 रुपये माली इमदाद का ऐलान किया गया है। नेशनल मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी वाई श्रीनिवास राव ने आरटीसी में डिजिटल चार्ट सिस्टम को हटाने की मांग की है। वो इस मुतालबे को लेकर 5 दिन से गुंटूर के आरएम दफ्तर में भूख हड़ताल पर है। आरटीसी मुलाजमीन ने आज मजदूर यूनियन लीडर के साथ इजहार यगानत किया। आरटीसी मुलाजमीन के लिए मुश्किल बन चुके इस सिस्टम से दस्तबरदारी की मांग लगातार की जा रही है। इस सिलसिले में मुलाजमीन का कहना यही है कि अगर हुकूमत उनके मुतालबात पूरे नहीं करती तो वो रियासत की सतह पर अपना एहतजाज जारी रखेंगे। एपी के वज़ीर-ए-आला वाई जगनमोहन रेड्डी ने रियासत के नए गवर्नर बिस्वा-भूषण हरिचंदन को अपनी मुबारकबाद पेश की। साथ ही कहा कि वो रियासत की तरक्की के लिए नए गवर्नर के साथ मिलकर काम करेंगे। नए गवर्नर के इंतखाब पर जगन ने ट्वीट के जरिए उनको मुबारकबाद दी है। गुज़िश्ता रोज़ ही मरकज़ ने उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के सीनियर लीडर हरिचंदन को तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर किया है। अब तक ईएसएल नरसिम्हन दोनों तेलुगु रियासतों यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। नरसिम्हन तेलंगाना के गवर्नर के तौर पर बरकरार रहेंगे। ईएसएल नरसिम्हन ने एपी के नामजद गवर्नर बीबी हरिचंदन को फ़ोन पे अपनी मुबारकबाद पेश की। साथ ही नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए, मसाई के लिए उम्मीद जाहिर की। और वहीं आंध्र प्रदेश के नामजद गवर्नर बीबी हरिचंदन को सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू ने भी अपनी मुबारकबाद पेश की। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि बीबी हरिचंदन अपनी नई जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने भी गवर्नर को अपनी मुबारकबाद दी और रियासत के अवाम की तरक्की के लिए काम करने की उम्मीद भी जाहिर की। करनूल के कदीम शहर में वाक़ मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ में करनूल हज सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मौलाना सलीम ने आज़मीन हज को बुनियादी मालूमात फराहम की। साथ ही कहा कि अनकरीब आज़मीन के लिए टीका अंदोज़ी का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम के माटूर मंडल बोलापल्ली टोल प्लाजा पर एक्साइज डिपार्टमेंट के हुक्काम ने बसों की तलाशी ली। 2 आरटीसी बसों से 80 किलो गांजा जब्त किया गया। गांजा स्मगलिंग करने वाले 9 अफराद जिनमें एक खातून भी शामिल हैं, इनको हिरासत में लिया गया। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ से ये गांजा स्मगलिंग किए जाने की इत्तला पर एक्साइज डिपार्टमेंट के हुक्काम ने नेशनल हाईवे नंबर 16 पर बसों की तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस ने स्मगलिंग के इल्ज़ाम में छत्तीसगढ़ के 5, तमिलनाडु के 1 और प्रकाशम जिले के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि गांजे को अपने सामान में छुपा कर लाया जा रहा था। गांजे पर मछली का पाउडर डाला गया था ताकि गांजे की बू न आ सके। तो बुलेटिन में इतना ही। आदाब।
इस न्यूज